ਨੈਕਸਟ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਇੰਟੀਗਰਲ ਆਫ ਦਾ ਫਾਰਮ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆਫ sin mx cos nx dx, ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆਫ sin mx sin nx dx, ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆਫ cos mx cos nx dx। यानी ਜਾਂ ਤਾਂ ਇੱਕ sin ਇੱਕ cos ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਦੋਨੋਂ sin ਹੋਣ, ਜਾਂ ਦੋਨੋਂ cos ਹੋਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਹੋਵੇ ਮਲਟੀਪਲੀਕੇਸ਼ਨ। ਤਾਂ ਇਹ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਇਸ ਟਾਈਪ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਹ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨਾ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਕੁਝ ਫਾਰਮੂਲੇ ਟ੍ਰਿਗਨੋਮੈਟਰੀ ਦੇ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਸੀਗੇ ਵੀ 2 sin a cos b ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਹੁੰਦਾ sin a plus b plus sin a minus b, 2 cos a sin b ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਹੁੰਦਾ sin a plus b minus sin a minus b, 2 cos a cos b ਇਕੁਅਲ ਹੁੰਦਾ cos a plus b plus cos a minus b, 2 sin a sin b ਇਕੁਅਲ ਹੁੰਦਾ cos a minus b minus cos a plus b। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਹੈ ਇਹ ए बी ਫਾਰਮੂਲਿਆਂ ਤੋਂ ਬਣੇ ਹੋਏ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਰਿਮਾਈਂਡ ਕਰ ਲਈਏ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫਾਰਮੂਲੇ ਬਣੇ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ sin a plus b ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਸੀਗੀ, sin a cos b plus cos a sin b, ਤੇ sin a minus b ਦੀ ਵੈਲਿਊ sin a cos b minus cos a sin। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਜੋੜੀਏ ਇਹ ਸਾਡਾ ਫਸਟ ਫਾਰਮੂਲਾ ਸੈਕੰਡ ਹੈ। ਜੇ 1 ਤੇ 2 ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜੋੜੀਏ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਆਹ ਸਾਈਡ ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਤੇ ਦੋਨੋਂ ਜੁੜ ਜਾਣਗੇ, sin a plus b plus sin a minus b इक्वल टू राइट हैंड साइड पे की होएगा, आ दोनों जुड़ जाएंगे, ऐड हो जाएंगे क्योंकि पॉजिटिव्स दोनों पॉजिटिव ने। यदि वैल्यू आ जाएगी 2 sin a cos, तो आ एक पॉजिटिव एक नैगेटिव है, ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो आ चीज़ आ जाएगी sin a plus b plus sin a minus b इक्वल टू 2 sin a cos। आही फर्स्ट फार्मूला। इस तरह सैकेंड फार्मूला लिए करांगे, इन्हों माइनस कर देंगे 1 दे विचों माइनस कर देंगे 2 तो की हो जाएगा, माइनस करो तो इन्हों के विचाले माइनस आ जाएगा, इतने आ जाएगा sin a plus b माइनस sin a minus b। लैफ्ट हैंड राइट हैंड साइड पर की होएगा, आ पॉजिटिव दोनों पॉजिटिव से जो माइनस करांगे तो हेठला नैगेटिव हो जाएगा, तो आ ये कट जाएगा, तो इतने तो साइन चेंज होकर पॉजिटिव हो जाएगा, तो यह अंतर क्या आ जाएगा 2 cos a sin। इस तरह cos a plus b cos a minus b नाल जिहड़े बाकी दे दो फार्मूले जिहड़े वो इस तरीके नाल बनदे। ठीक है कि तां इन्हां दा असीं इत्थे यूज़ करना। तां ऐसे इहदे च तुसीं देखो भी इहदे च भी एक साइन है, एक cos है, एक साइन एक cos, दोवां दे विच दोवें फार्मूले वैसे जिहदे जिथे मर्जी असीं यूज़ कर सकते हैं एक दूजे की थां ते, क्योंकि साडे कोल जिहड़ा क्वेश्चन आएगा जिवें आ देखो हेठां क्वेश्चन दिता होया sin 4x cos 3x sin 3x cos 4x। ऐसे दोवां थावां ते चाहे फस्ट फार्मूला यूज़ कर लिए चाहे सैकेंड, क्योंकि ए ते बी तो असीं आपदी इत्थे असीं sin a जे असीं 4x नूं a मान लीए तो आ sin a cos b बन गया, इत्थे जे 3x नूं a मान लीए तो आ भी sin a cos b बन गया। ठीक है ना। इस तरह जे असीं इहनूं a मान के इहनूं b मान लीए तो cos a sin b बन जाएगा। तो साढ़े कोले कोई भी फॉर्मूला इन्होंने दोहां चों असीं यूज़ कर सकते, पर कैलकुलेशन ईजी रखने वास्ते असीं की करांगे, जिहड़ा वड्डा एंगल है उन्होंने ए लवांगे ते छोटे एंगल नूं हमेशा बी लवांगे फॉर द ईज ऑफ द कैलकुलेशन ओनली। ये कैलकुलेशन ईजी रखने वास्ते होर इहदा कोई मतलब नहीं है, चाहे असीं जिवें मर्जी जिहड़ा फॉर्मूला दोवां दे विच असीं यूज़ कर सकते हैं। ठीक है ना। तो आप देखते हैं कि क्वेश्चन होंगे। देखो एग्जाम्पल 27 का फर्स्ट क्वेश्चन इंटीग्रेशन ऑफ sin 4x cos 3x, ये सानू नज़र आ रहा है sin a cos b। ठीक है, तो ये सानू 2 चाहिए, तो 2 बनाने वास्ते 2 ना मल्टीप्लाई से डिवाइड करता। ठीक है, हम ये बन गया 2 sin a cos b, तो यही वैल्यू की होंगी है sin a plus b प्लस sin a minus b। a प्लस b करांगे तो जुड़ के 7x हो जाएंगे, माइनस करांगे तो 4x minus 3x x आ जाएगा।
ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਈਜ਼ੀਲੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਪਲੱਸ ਸਾਈਨ ਆ ਗਿਆ। ਦੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟ੍ਰਿਗਨੋਮੈਟ੍ਰਿਕ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਇੱਕ ਕੀ ਹੈ ਪਲੱਸ ਸਾਈਨ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਈਜ਼ੀਲੀ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟ ਕਰ ਸਾਈਨ 7x ਦਾ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਿਹੜਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਸਾਈਨ ax + b ਵਾਲਾ ਫਾਰਮੂਲਾ। ਇਹਦਾ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਮਾਈਨਸ cos ax + b ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਈ x ਦਾ ਕੋਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ a। ਤਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਹੈਗਾ 7x क्योंकि x ਦੇ ਨਾਲ ਕੱਲਾ x ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ sin x ਵਾਲਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਵੇਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ sin x ਦਾ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ cos x - cos x। ਪਰ ਜਿੱਥੇ x ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਹੋਏਗਾ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਆਹੀ ਵਾਲਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ax + b ਵਾਲਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਜਾਏਗੀ -cos 7x ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਈ ਕੋਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਆਫ x। ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ sin x ਦਾ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ -cos x। ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆਫ sin 3x cos 2x dx ਹੈ ਨਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ sin a cos a sin a sin b ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ 2 ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ 2 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਪਹਿਲਾਂ। sin a sin b ਕਾਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੁੰਦਾ cos a - b cos a + b। ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਨਾ ਬਾਕੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਥੋੜਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈਗਾ ਕਿਉਂ ਇਹਦੇ 'ਚ a - b ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈ ਟਰਮ ਤੇ a + b ਵਾਲਾ ਨਾਲ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਬਾਕੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ a + b ਅੱਗੇ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ cos a + b a - b ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਈਨ ਉਲਟ ਹੁੰਦੇ cos a + b ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਈਨਸ ਸਾਈਨ ਹੁੰਦਾ cos a - b ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਟਰਮਸ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਇੱਥੇ ਪਲੱਸ ਸਾਈਨ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਲਟ ਸਾਈਨ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਇਹ ਉਲਟ ਹੀ ਆਏਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ 2 sin a cos sin a sin b ਦੀ ਵੈਲਿਊ cos a - b cos a + b। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ a ਕਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਖਿਆਲ ਕਰ ਲੈਣਾ ਸੀ ਵੱਡੇ ਐਂਗਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ a ਲੈਂਦੇ ਆ ਸਾਡਾ a ਹੈ ਤੇ ਆ b ਹੈ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਇਹ ਹੋ ਜਾਏਗਾ cos a - b cos a + b। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਈਨਸ ਕਰਿਆ ਤਾਂ 3x ਆ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਲੱਸ ਕਰਿਆ ਤਾਂ 5x ਆ ਗਿਆ। cos x ਦਾ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ sin x ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ cos 5 ਦਾ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ 5x ਦਾ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ऐसे ax + b वाला फार्मूला है वांगू लगेगा तो cos ax + b होंगे sin ax + b डिवाइडेड बाय a तो sin 5x / 5 आ जाएगा। यही साडा आंसर है। ठीक है नैक्सट आ साडे कोल इंटीग्रेशन ऑफ sin 3x cos 4x। हुण इत्थे असीं वड्डे एंगल नूं a लेना तो साडे कोल आ a है तो आ b है ਇਹਦਾ मतलब ये साडे कोल cos a sin b ऐसे इनू 2 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਕੇ 2 cos a sin b ਬਣਾ ਲਿਆ। 2 cos a sin b ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ sin a + b ਮਾਈਨਸ sin a - b ਪਲੱਸ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ b ਨੂੰ ਤਾਂ 7x ਆ ਜਾਏਗਾ ਮਾਈਨਸ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ x ਆ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ 7x ਤੇ x ਆ ਜਾਏਗਾ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ sin 7x ਦਾ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ -cos 7x/7 ਤੇ sin x ਦਾ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ -cos x ਹੁੰਦਾ। ठीक है ना तो माइनस प्लस होके प्लस cos x। ठीक है ना नैक्सट है cos 2x cos 4x ये होंगे cos a cos b आ साडा a है तो b। ठीक है 2 ना मल्टीप्लाई डिवाइड करके असीं 2 cos a cos b बना रहे 2 cos a cos b की वैल्यू cos a + b प्लस cos a - b। ठीक है ऐड करांगे तो 6x हो जाएगा माइनस करांगे तो 2x हो जाएगा। cos 6x का इंटीग्रेशन sin 6x + 6 cos 2x का इंटीग्रेशन sin 2x cos 6x का 6 sin 6x/6 तो cos 2x का sin 2x/2 इंटीग्रेशन हो जाएगा। तो इस तरीके ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ क्वेश्चन है ईजीली ਅਸੀਂ ਕਰ सकते हैं। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਨੋਟ ਕਰ ਲਈਏ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਥਰਡ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ sin a ਇਹਨੂੰ a ਮੰਨ ਕੇ ਕਰਦੇ ਇਹਨੂੰ b ਮੰਨਦੇ sin a cos b ਸਮਝ ਕੇ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਕੀ ਆਹੀ ਆਨਸਰ ਆਉਣਾ ਸੀ वो भी थोड़ा जो चेक कर लिया तो ये हम जे असीं इहनूं मनते असीं की करते फिर 2 ना मल्टीप्लाई डिवाइड 1/2 2 sin 3x cos 4x dx। हुण इहदे च असीं इहनूं a समझ रहे हैं तो इहनूं b समझ रहे हैं तो यह हो गया 1/2 2 sin a cos b तो 2 sin a cos b की वैल्यू होंगी है इंटीग्रेशन ऑफ sin ax + b यानी ये आ जाऊगा 3x + 4x ते प्लस sin ax a -
ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ 1/2 ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ sin 7x प्लस sin -x आ जाए है ना dx इक्वल्स टू 1/2 sin 7x ते आ जिहड़ा हैगा sin -θ ਇਹਦੀ वैल्यू ਹੁੰਦੀ है -sin θ तो इस तरीके dx ਹੁਣ ਇਹਦਾ इंटीग्रेशन करांगे 1/2 sin 7x का इंटीग्रेशन होता माइनस cos 7x/7 हो जाएगा तो यदा इंटीग्रेशन यदा भी माइनस cos x हो जाएगा तो माइनस माइनस का क्या प्लस हो जाएगा प्लस सी हो जाएगा। तो हम देखो ये वही चीज़ आ रही है आई बड़ी देखो 1/2 माइनस cos 7x/7 प्लस cos x प्लस सी ठीक है। सो चाहे उस तरीके ना करो चाहे ये हम बस फर्क यही है भी उत्थे साडे कोले जे असीं वड्डे चों छोटा एंगल घटाउने तो माइनस नैगेटिव एंगल नहीं आते नैगेटिव एंगल ना आने करके थोड़ा जिहा सुखाला रहिंदा सानूं ईजी रहिंदा इत्थे थोड़ा जिहा ये है भी माइनस एंगल आएगा तो साइन -θ cos -θ दीयां वैल्यूज असीं वो भी असीं इहदे च याद रखने पैणगे सानूं वो भी असीं इत्थे अप्लाई करांगे ठीक है। तो जिहड़ा मर्जी मैथड असीं इत्थे कर सकदे सी पर असीं आपदे सौख वास्ते ईज ऑफ कैलकुलेशन वास्ते असीं की करते हैं हमेशा वड्डे एंगल नूं असीं ए लैंदे हैं छोटे एंगल नूं बी लैंदे हैं कर भावें असीं इस तरीके नाल भी सकदे सी। नैक्सट है साडे कोले एग्जाम्पल 28 इवैल्यूएट cos 2x इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x cos 4x cos 6x डी ठीक है। हुण इत्थे की है साडे कोले 3 कॉस आ गए ठीक है ना ऊपर असीं 2 वाला क्वेश्चन करके 3 वाला करने वास्ते की करांगे पहला 2 ते असीं फार्मूला ला लिया की करिया 2 नाल मल्टीप्लाई डिवाइड कर लिया ठीक है कि तो ये की बन गया हुण 2 cos A cos B 2 cos A cos आ साडा A आ भी 2 cos A cos B तो A प्लस B कर cos A प्लस B cos x हो जाऊगा तो cos A माइनस B करांगे तो cos 2 cos x ना ठीक है। cos x अंदर हम मल्टीप्लाई करांगे तो cos स्क्वायर 6x हो जाएगा प्लस cos 6x cos 2x हो जाएगा ठीक है। ਹੁਣ ਆ फिर cos A cos B बन रहा ਇਹਨੂੰ फिर 2 ਨਾਲ मल्टीप्लाई करना ਹੁਣ ਜਦੋਂ 2 ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਸਾਡਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਨੂੰ 2 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪलाई ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਹ 'ਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਟਰਮ ਹੈ ਸਾਰੇ ਟਰਮ 2 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪलाई ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਵੀ 2 ਆ ਜਾਏਗਾ ਇੱਥੇ ਵੀ 2 ਆ ਜਾਏਗਾ 2 ਟਰਮ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 2 ਆ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ 2 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪलाई ਤੇ ਡਿਵਾਈਡ ਵੀ 2 ਨਾਲ ਕਰਿਆ ਤਾਂ 2 ਪਹਿਲੇ ਸੀ ਹੇਠਾਂ ਤੇ 2 × 2 4 ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਬਣ ਗਿਆ 2 cos स्क्वायर 6x प्लस 2 cos 6x cos 2x ना ये बन गया 2 cos A cos B ਇਹਦਾ ਤਾਂ ਫਾਰਮੂਲਾ ਉਹੀ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ cos A plus B plus cos A plus B ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ ਹੁਣ ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ 2 cos स्क्वायर A वाला फार्मूला 2 cos स्क्वायर A ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਾਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 1 plus cos 2A ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜਾਂ कह लो भी cos स्क्वायर A कला ली तो आ 2 इधर आके डिवाइड हो जाएगा ठीक है ना। तो cos स्क्वायर A की वैल्यू की होती है 1 प्लस cos 2A/2 ऐसे cos स्क्वायर A की वैल्यू असीं पुट करके 1 प्लस cos 2A इतने क्योंकि A की वैल्यू 6x है तो 2A कितना हो जाएगा 12/2 2 ना 2 कैंसिल ठीक है ना 1 प्लस cos 12x प्लस cos 8x प्लस cos 4x ठीक है। हूँ ये इंटीग्रेशन कर सकते हैं 1 का x आ जाएगा cos 12x का sin 12x/12 आ जाएगा cos 8x का sin 8x आ जाएगा cos 4x का sin 4x का 4 आ जाएगा ठीक है। सो इस तरीके क्वेश्चन किया जा सकता पहले असीं 2 ते फार्मूला ला लेंगे फिर 2 का जो आंसर आएगा उन्होंने इत्थे अंदर मल्टीप्लाई करके फिर फार्मूले बनने उन्होंने फिर असीं फार्मूले लगे अप्लाई। नैक्सट देखो नैक्सट है साढ़े को sin x sin 2x sin 3x ऐसे की करा पहला इन्होंने दोवां ते अप्लाई किया की करांगे 2 ना मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे तो बन गया 2 sin B है ना यदी वैल्यू होंगी है cos A माइनस B माइनस cos A प्लस B
ठीक है। तो ये आ गया cos x ਤੇ cos 3x, आ cos 3x अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो सॉरी sin 3x अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये बन जाएगा cos x sin 3x माइनस cos 3x sin 3x। आता बनता देखो sin a cos b, ठीक है कि आ बन रहा है sin a cos b नहीं बन रहा है, तो दोनों ही देखो 3x है, तो ये बन रहा है sin a cos a, ठीक है ना। तो ये असी sin a cos b वाला फार्मूला नहीं यूज़ करांगे, ये असी दूसरा फार्मूला यूज़ करांगे। पहला आप कर लीए ठीक, फिर दसते अगे चल के कि सब तो पहला तो ये 2 चाहिए सानू, तो 2 नाल मल्टीप्लाई करांगे, 2 नाल मल्टीप्लाई करांगे तो दोनों टर्म 2 नाल मल्टीप्लाई 2 है ना, फिर इतने 2 2 दा 4 तो साढ़े को आ गया 2 sin a cos b, यह फार्मूला sin a प्लस b प्लस sin a माइनस, तो आ जी चीज़ है ये बन गई 2 sin a cos a, तो 2 sin a cos a का इक्वल होंगे सूँ पहले ही पता है 2 sin a cos a की वैल्यू sin 2a होंगी, sin 2a वाला फार्मूला है, ठीक है कि तो ये थां ते sin 2a यानी a की वैल्यू इतने 3x है, तो 2a हो जाएगा 6x हो जाएगा। ख्याल बस यही रखना है भी जदों दोनों इक्को जे आ रहे हैं एंगल इक्को जे आ गए तो a sin 2 sin a cos a वाला फार्मूला लावांगे, ना कि 2 sin a cos b या cos a sin b वाला फार्मूला, ठीक है। तो हुण इन्हां दा इंटीग्रेशन असीं ईजीली कर सकते हैं, sin 4x का इंटीग्रेशन माइनस cos 4x का 4, तो sin 2x का इंटीग्रेशन माइनस cos 2x का 2, तो sin 6x का माइनस cos 6x by 6 माइनस प्लस, ठीक है प्लस सी। नैक्सट साढ़े को इवैल्यूएट इंटीग्रेशन ऑफ sin 4x by sin x, sin 4x तो पहला sin 2a वाला फार्मूला लाना, sin 2a का इक्वल हमने ऊपर दसिया 2 sin a cos a है ना, तो इतने 2a की थां पर क्योंकि 4x है तो इतने उन्होंने क्योंकि यदा आ एंगल दोनों हाफ होंगे तो इतने 2x होंगे, तो ऐसे लिखांगे 2 sin 2x cos, फिर sin 2x के फिर आही फार्मूला, तो sin 2x की थां की वैल्यू की हो जाएगी 2 sin x cos, तो ये थां पर फिर असीं दोबारा 2 sin यानी साढ़े को आ चीज़ सी 2 sin 2x cos 2x, ये असीं हुण इसे ये थां पर फिर लिखा 2 sin x cos x, sin 2x की थां पर इंटू cos 2x है, हमने तो ब्रैकेट खोलेंगे तो आप अंदर मल्टीप्लाई 4 हो जाएगा, मल्टीप्लाई 4 sin x cos 2x आ चीज़ है ना। तो आ 4 तो कॉन्स्टेंट बाहर कर लिया, sin x में sin x कैंसिल हो जाएगा, इतने बचे हम cos a cos 2x है ना, ये चो 2 इतने 2 इंटू 2 ने तो एक 2 अंदर ले जाएंगे, तो यह बन जाएगा 2 cos a cos है ना, तो 2 cos a cos b की वैल्यू cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b, तो इन्होंने दोनों का सम करेगा 3x आ गया माइनस करता x आ गया, हम इंटीग्रेशन करेंगे। सो ये रिलेटेड कुछ क्वेश्चन दिते हैं, इस तो बाद ये क्वेश्चन तुम करके देखने आंसर दिते हुए हैं, आंसर ना मैच करके देखना, कोई क्वेश्चन नहीं आएगा तो डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है।